Hello everyone, welcome to our daily current affairs GK MCQs class। नमस्कार दोस्तों, हमारे डेली करंट अफेयर्स MCQs जीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 14 फरवरी 2026 के उन महत्वपूर्ण समाचार और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Today, we will cover the most important headlines and MCQs for February 14th, 2026, which are crucial for all competitive exams. Let's dive in. Instructions for the class. Attempt 8 questions before answer revealed. Overlook our headlines for today's class. Today's class is covered 7 major topics, India as well around the world. Topic number 1, polity and governance related questions. 2 is social sector questions. And 3 is economic sector questions. Fourth, international relations. Fifth, environment. Sixth, defense. And seventh is international organizations related questions. Let's dive in. Dear friends, before starting the video, I would like to request everyone, if you has not subscribed our channel, kindly subscribe the channel and ring the bell icon. Hence, you can get the early notifications when our video is published. प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारे चैनल में पब्लिश होने वाला हर वीडियो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। Today's first question: what international observance is celebrated annually on 13 February? 13 फरवरी की प्रतिवर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, बी वर्ल्ड रेडियो डे, सी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे एंड डी वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम डे। Every year on February 13th, the world celebrates the power of radio as a medium to educate, provide information and promote freedom of experience. हर साल 13 फरवरी को दुनिया भर में रेडियो की शक्ति को याद किया जाता है, जो शिक्षा, सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक सशक्त माध्यम है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज B is the right answer. World Radio Day. Next question. Question number 2. World Radio Day was proclaimed by which international organizations? विश्व रेडियो दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा घोषित किया गया था? आंसर ऑप्शन ए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ITU, बी यूनेस्को, सी WHO एंड डी वर्ल्ड बैंक। UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations, officially proclaimed this day in 2011 to highlight radio's role in inclusive governance and telecommunication. यूनेस्को ने 2011 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस को घोषित की थी। इसका उद्देश्य समावेशी शासन और संचार में रेडियो की भूमिका को रेखांकित करना है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन सिटी इज होस्टिंग अ वर्ल्ड रेडियो डे conclave in 2026 to discuss the role of radio and AI? रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा करने के लिए 2026 में विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? आंसर ऑप्शन ए वाराणसी, बी रायपुर, सी जयपुर एंड डी कलकत्ता। The World Radio Day Conclave 2026 is being held in Raipur. The focus this year is very modern: the ethical use
of artificial intelligence in public communication. 2026 का विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का चर्चा का प्रमुख केंद्र है सार्वजनिक संचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक उपयोग है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4. As for the Public Information Bureau released for the World Radio Day 2026, All India Radio AIR broadcast in how many languages and dialects? विश्व रेडियो दिवस 2026 के लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो AIR कितनी भाषाओं और बोलियों में प्रसारण करता है? आंसर ऑप्शन ए 50 लैंग्वेज, बी 99 लैंग्वेज, सी 182 लैंग्वेज एंड डी 310 लैंग्वेज। According to the latest data, All India Radio shows incredible diversity by broadcasting in 182 languages as per the PIB publish release language and dialects, reaching almost every corner of India. लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार ऑल इंडिया रेडियो 182 भाषाओं और बोलियों का प्रसारण करता है। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक अद्भुत मंच है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन इज फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Which political party won a landslide victory in the 2026 general election in Bangladesh? बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल ने भारी बहुमत से जीत हासिल की? आंसर ऑप्शन ए अवामी लीग, बी जातीय पार्टी, सी बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP एंड डी नेशनल सिटीजन पार्टी। In a major political shift, the Bangladesh National Party (PNB) secured a two-third majority in the general election held on February 12 and 2026. पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनावों में बांग्लादेश की नेशनल पार्टी BNP ने दो हिताई बहुमत के साथ शानदार जीत हासिल की है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. हु इज poised to become the next PM of Bangladesh after the 2026 election victory? 2026 के चुनाव में जीत के बाद बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? आंसर ऑप्शन ए शफीकुर रहमान, बी मोहम्मद यूनुस, सी तरीकुर रहमान एंड डी शेख हसीना। Following the Bangladesh National Party's victory, Tariq Rahman is all set to take oath as the next Prime Minister of Bangladesh. बांग्लादेश नेशनल पार्टी की इस जीत के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर, तारिक रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. The Bangladesh general election held on 12 February 2026 had a voter turnout of approximately. बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को हुए आम चुनाव में लगभग कितने मतदाताओं ने भाग लिए थे? आंसर ऑप्शन ए 42%, बी 50.1%, सी 59.44% एंड डी 75%। The democratic process saw active participation with the voter turnout record at approximately 59.44% in Bangladesh general elections, which was held on 12 February 2026.
इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और मतदाता का प्रतिशत लगभग 59.44% दर्ज किया गया था. So the correct answer for this question C is the right answer. 49 point sorry 59.44%. Next question. Question number 8. Alongside the 2026 Bangladeshi general election, what else was conducted on the same day? 2026 के बांग्लादेशी आम चुनाव के साथ साथ उसी दिन और क्या क्या आयोजित किया गया था? आंसर ऑप्शन ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बी कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम, एंड सी लोकल बॉडी इलेक्शंस, एंड डी यूथ काउंसिल polls. It was a busy day for the voters as a constitutional referendum was held simultaneously with the general elections day. मतदाताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि आम चुनाव के साथ साथ एक संवैधानिक जनमत संग्रह कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी आयोजित किया गया था 12 फरवरी 2026 में. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन दिस क्वेश्चंस फॉर B is the right answer. Constitutional referendum. Next question. Question number 9. Which of the following was one of the main reform proposal in the 2026 Bangladeshi constitutional referendum? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 2026 के बांग्लादेशी संवैधानिक जनमत संग्रह में प्रमुख सुधार प्रस्ताव में से एक था? ए रिमूवल of term limits, B abolitions of parliament, C judicial independence and prime minister term limits, D lowering voting age to 16. The referendum focused on critical reforms, primarily strengthening judicial independence and the setting limits on the prime minister's term. इस जनमत संग्रह का प्रमुख उद्देश्य था कि न्यायिक स्वतंत्रता का मजबूत करना और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना जैसे प्रमुख सुधार को लागू करना था. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर. जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड पीएम टर्म्स लिमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. वर्ल्ड रेडियो डे commemorates the establishment of which earlier broadcasting entity in 1946. विश्व रेडियो दिवस 1946 में स्थापित किस पूर्ववर्ती प्रसारण संस्था की स्मृति में मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन ए बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, बी यूनाइटेड नेशंस रेडियो, एंड सी वॉइस ऑफ अमेरिका, एंड डी ऑल इंडिया रेडियो. The World Radio Day commemorates establishment of specially marks the anniversary of the first broadcast by United Nations Radio in 1946. यह दिन विशेष रूप से 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो यूनाइटेड नेशंस रेडियो द्वारा किए गए पहले प्रसारण की वर्षगांठ की याद दिलाता है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन B is the right answer. United Nations Radio. Next question. Question number 11. Which international framework organizations adopted World Radio Day as an official observations? किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संगठन ने विश्व रेडियो दिवस को आधिकारिक रूप से मनाने के लिए अपनाया था? आंसर ऑप्शन ए G20 सम्मेलन, बी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सी कॉमनवेल्थ, एंड डी एशियन कमेटी. Following the UNESCO's proclamations, the United Nations General Assembly (UNGA) formally adopted it is as an international day. यूनेस्को की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा
जी ने इसे आधिकारिक के तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया था। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12. According to the recent RBI data released this week, which factor has been identified as the primary driver of India's modernization in retail inflation? इस सप्ताह की जारी आरबीआई के हाली आंकड़े में अनुसार भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी का प्राथमिक कारण कौन सा कारक मनाया गया था? आंसर ऑप्शन ए डिक्लाइन इन फ्यूल प्राइसेस, बी कूलिंग फूड प्राइसेस स्पेशली इन वेजिटेशंस, सी रिडक्शंस इन इंपोर्ट ड्यूटीज एंड डी फॉल इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। The Reserve Bank of India noted that the retail inflation has eased recently, largely due to a significant drop or cooling in food prices, especially in vegetables. हाल ही में आरबीआई के आंकड़े के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण है खाद्य पदार्थ, विशेषकर सब्जियां की कीमती में गिरावट है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी इज द राइट आंसर, कूलिंग फूड प्राइसेस स्पेशली इन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13. The latest United Nations climate assessment warns that which sector is currently the fastest growing source of global greenhouse gas emissions. संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम जलवायु आकलन में चेतावनी दी गई है कि वर्तमान में कौन सा क्षेत्र वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे तेजी से बढ़ता स्रोत है? आंसर ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी पावर जनरेशन, सी ट्रांसपोर्ट एंड डी कंस्ट्रक्शन। The United Nations has released on alarm that the transport sector is now the fastest growing contribution to global greenhouse gas emission. संयुक्त राष्ट्र के जलवायु आकलन में चेतावनी दी गई है कि परिवहन क्षेत्रों के वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्रोत बन गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, transportations. Next question. Question number 14. India recently concluded a bilateral military exercise with which country focusing on joint urban warfare and counter-terror operations? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संपन्न किया जिससे संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान पर ध्यान केंद्रित किया गया था? आंसर ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी इंडोनेशिया एंड डी वियतनाम। India and Indonesia recently concluded a joint military exercise aimed at improving tactics in urban warfare and counter-terrorism. भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास संपन्न किया है जिसमें शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियान के साझा कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C is the right answer, Indonesia. Next question. Question number 15. According to the latest International Monetary Fund outlook released this week, which region is expected to show the weakest economic growth in 2026? इस सप्ताह में जारी की गई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2026 में किस क्षेत्र में सबसे कमजोर आर्थिक विकास होने की उम्मीद है? आंसर ऑप्शन ए साउथ एशिया, बी सब सहारन अफ्रीका, सी यूरोजोन एंड डी लैटिन अमेरिका।
In recently, the International Monetary Fund projects that the Eurozone will likely face the weakest economic growth globally in 2026. हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 2026 में यूरोजोन क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर सबसे कम रहने की संभावना बताया जा रहा है. सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी इज द राइट आंसर, यूरोजोन. Dear friends, that's all for today's current affairs class. If you found this video, make sure to revise these points as they are vital for your exams. Like, share, and subscribe for our daily dose GK. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.